Good morning, students. We are going to start chapter 5. I'll brief you regarding that. Okay, from this chapter, there are 2 questions asked in the board in section E, 8 marks each. Right? There are 5 questions in section E. Out of that, you have to attempt 3 questions. Out of that, 2 questions are from this chapter. So that means it's a very important chapter. Okay, so we'll start with admission of a partner. Admission of a partner. What is admission? You take an admission in school, right? Like in partnership, when there are suppose only 2 partners, A and B, 2 partners. Then one more partner is required. Why it is required? Why one more partner is required? Yeah, from the last bench, Amrita, please tell me why a partner is required. तुम्हारे हिसाब से क्या क्यों जरूरत पड़ती, पार्टनर की क्यों जरूरत पड़ती है? पार्टनर की क्यों जरूरत पड़ती है? बिना पार्टनर नहीं चला सकते हैं बिजनेस, क्यों जरूरत पड़ती है पार्टनर की? Why it is required? Partner is required. क्यों? सर कैपिटल बढ़ेगा. Yes, stand up and say very good. Yes, capital. Shortage of capital to increase the business. Capital is required definitely, right? So for additional capital. Any other things? Sit down. Very good. Sit down. Any other thing? और कोई चीज हो सकती है क्या? दूसरा बताओ. मैन पावर, स्किल चाहिए कि नहीं बिजनेस के लिए, डेवलप करने के लिए. कोई अच्छे स्किल वाला पर्सन मिल गया तो उसको ले सकते हैं ना पार्टनरशिप में. बिजनेस विल इंक्रीज, बिजनेस विल डेवलप, ग्रो, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा. दैट इज ओनली रिक्वायर्ड इन बिजनेस. बराबर है. तो पार्टनरशिप में कैपिटल है, मैन पावर है, स्किल्स है टू एक्सपांड द बिजनेस. बराबर है. तो वर्क भी डिवाइड हो जाता है. 3 पार्टनर हो गए, 2 की जगह 3 पार्टनर होंगे तो वर्क डिवाइड होगा कि नहीं? इट विल बी डिवाइडेड डेफिनेटली, राइट? तो ये मैंने 2 एग्जांपल लिया है, ए और बी. बराबर है. और जो है रुपीस इन क्रोर्स. ओके. नाउ ए एंड बी आर पार्टनर्स. सपोज दे हैव स्टार्टेड विद अ कैपिटल. He has invested 3000 crores and he has invested 4000 crores. Okay, 2 partners है. Capital investment is 3000 crores and this is 4000 crores. Okay, after that they have decided to share profit and loss ratio as 3:2. Okay, they are sharing profit ratio 3:2. Now say after 10 years, after 10 years, suppose the profit is 6,000 crores. So how it will be divided? 3:2. So what we will do? 6,000 divided by 5. 6,000 divided by 5 into 3, that is 3,600 and 2,400. If it is right? Okay, you require a calculator, I don't require, right? You know that. 3,600 and 2,400. Okay, this was the scenario when they were 2 partners. After 10 years, this was the scenario. Now they decided, this is suppose of 31st March 2025. Now on 1st April 2025, C as a partner. He was not there. He was admitted for 1/5 share. 1/5 share they are going to give him. उसको 1/5 share दे रहे हैं नए पार्टनर को. बराबर है. उसको बोला कैपिटल लेके आओ. So he brought capital. Okay. He brought capital. Say he was told to bring 5,000 crore as capital. He was told to bring
5,000 crore as capital. बट इफ यू सी, तुम ये देखेंगे तो उसका अगर वो एडमिट हो गया तो 6,000 प्रॉफिट तो ऑलरेडी है बिजनेस का, राइट? 6,000 का 1/5 निकालो, 6,000 इंटू 1/5, so 1,200. So 1,200 crores he will get without doing anything. He is just admit किया उसको डायरेक्टली 1,200 crores मिल गया. Why? Because from 10 years both the partners A and B are working very hard. बहुत ज्यादा उन लोग ने मेहनत की, तब तो इतना प्रॉफिट बना ना इतने साल के बाद. कोई भी बिजनेस देख लो, स्टार्टिंग में वो लॉस में चलता है. आफ्टर 1 or 2 years स्लोली बिजनेस प्रॉफिट में आता है. तो 10 years के बाद इतनी मेहनत करने के बाद 6,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, तो उसको 1,200 रेडीमेड दे देंगे? डू यू थिंक? They are not mad. A and B are not mad, right? To give ready-made 1,200. So what they will say? You bring goodwill. We want goodwill also. Capital will be in the business, 5,000 crores, right? But we want goodwill because we will accommodate you. We will sacrifice our share. देखो सिंपल लॉजिक बताता हूं. प्रॉफिट कितना है अपना? 6,000. 1,200 we will give to C, right? कितना बचेगा? पहले कितना बचता था? 6,000. अभी कितना बचा? तो प्रॉफिट इज रिड्यूस, नो? सो दैट मीन्स दे आर सैक्रिफाइसिंग, A and B सैक्रिफाइसिंग देयर प्रॉफिट टू C. C को प्रॉफिट दे रहे हैं उन लोग, बराबर है? रेडीमेड प्रॉफिट दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ तो लेना है ना, तो गुडविल लेंगे. सो गुडविल का कॉन्सेप्ट इधर आता है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वी हैव सीन इन चैप्टर 3, राइट? यू नो दैट डिफरेंट वैल्यूएशन. तो उन लोग ने वैल्यूएशन किया, कि गुडविल इज वैल्यूड एट, गुडविल जो है आज के तारीख में इज वैल्यूड एट से 25,000 गुडविल वैल्यूएशन है फर्म का. उसमें से ही शुड ब्रिंग 1/5. सो व्हाट इज द अमाउंट? सो 5,000 crores he will bring गुडविल. तो उसको गुडविल लाने के लिए बोलेंगे गुडविल he will bring 5,000 crore. कैपिटल ऑल्सो 5, गुडविल ऑल्सो 5. तो अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे गुडविल को? इन लोगों को मिलना चाहिए ना 5,000 crores, बिकॉज A and B are sacrificing अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसके बदले में उन लोगों को कुछ गेन होना चाहिए. वी हैव सीन द गेन रेशियो ऑल्सो, नो? गेन तो सेक्रीफाइस करता है, उसको कुछ मिलेगा. तो A and B को ये 5,000 crores जो गुडविल है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. कौन से रेशियो में? सो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन sacrificing ratio. अभी sacrificing ratio how to calculate? No need to calculate. जब एक इंफॉर्मेशन दिया होगा 1/5 शेयर, तो no need to calculate. जो ओल्ड रेशियो होगा that will become sacrifice ratio automatically. The old ratio will become sacrifice automatically. यानी जो ओल्ड रेशियो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. जब न्यू रेशियो दिया होता है ना, then you have to calculate old minus new. फॉर्मूला है ना सैक्रिफाइस. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू. तो अभी जरूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर, बिकॉज दिस रेशियो वी कैन सैक्रिफाइस रेशियो विल बी 3:2. यानी दिस 5,000, दैट मीन्स 3,000 जो है he will get 3,000 and 2,000 he will get as goodwill. So goodwill will be distributed in sacrificing ratio. That is, sacrificing ratio is sacrificing ratio is 3:2. That is 3,000 and 2,000. तो गुडविल किसको मिला? ए और बी को. क्यों मिला? वाई? गुडविल क्यों मिला इन लोगों को? बिकॉज उन लोग ने सी को यस एकोमोडेट किया और प्रॉफिट दिया.
अपना सेक्रीफाइस किया प्रॉफिट, दे सेक्रीफाइस प्रॉफिट फॉर सी, ए और बी को प्रॉफिट कम हो गया, देखा ना हम लोग ने, 4800 मिल रहा ना, कम हो गया, 1200 इज लेस, 4800 ही बचा है, तो 4800 ही मिलेगा उन लोगों को इंस्टेड ऑफ 6000, तो प्रॉफिट कम हो गया, तो उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है एकोमोडेट करने के लिए उसको, बराबर है। तो सेक्रीफाइस किया तो व्हाट दे शुड गेट, दे शुड गेट गुडविल, राइट, क्लियर, आ रहा है समझ में? ओके, नाउ वी विल गो अहेड, या so now we will take an example. Suppose assets, I am writing some assets on 31st March 2025. Suppose machinery, these two assets are given in the balance sheet. Now C is admitted. This is the balance sheet of A and B. This is the balance sheet of A and B. Suppose these two assets are given and C is admitted. And C जो है वो अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है मशीनरी और फर्नीचर ये वैल्यूएशन पे, तो क्या होगा? इफ मशीनरी को एक्सेप्ट किया यही वैल्यूएशन पे और फर्नीचर भी 300 पे एक्सेप्ट किया, तो क्या होगा? उसके बाद में अगर सेल किए तो सपोज कि ये मशीनरी को 25,000 की जगह पे सोल्ड ऑन 21st अप्रैल 2025, सपोज 20,000 करोड़ पे उसको सेल आउट किया, प्लांट एंड मशीनरी पूरा लॉस हो गया, 25,000 इस पे 20,000 करोड़ में सेल किया है, तो फिर ये जो है वो लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ? 5,000 करोड़। नाउ सी इज ऑल्सो पार्टनर, व्हाट इज हिज शेयर? इंटू 1/5, तो 1,000 करोड़ का लॉस हुआ उसको, तो ही शुड नॉट एक्सेप्ट, यू शुड नॉट एक्सेप्ट नेवर, वेन एवर यू आर एडमिटेड इनटू फर्म, ये एसेट्स को बोलने का चेंज करो, रीवैल्यू, क्या बोलते हैं उसका वर्ड? रीवैल्यू। तो दे विल सिट टुगेदर ए बी सी एंड एक वैल्यूअर को बुलाएंगे जो वैल्यूएशन निकाल के देगा। वैल्यूअर क्या करेगा? वैल्यूएशन निकालेगा, आज की तारीख में मशीनरी की वैल्यू क्या है, तो बोलेगा भाई 18,000 करोड़ ओनली, नॉट मोर देन दैट। फर्नीचर की वैल्यू तो बोलेगा 200 करोड़ ओनली, उससे ज्यादा नहीं है, तो उसको रीवैल्यू, हर एक एसेट्स लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने रीजन बताया, क्योंकि अगर एसेट्स बेचा लॉस हुआ तो सी को भी बेयर करना पड़ेगा। एज ए न्यू पार्टनर यू शुड चेक ऑल दिस थिंग्स, हर एक चीज को रीवैल्यू करना है। क्यों करना है? इसका रीजन ये कि है, नहीं तो फिर तुमको लॉस होगा, नए पार्टनर को लॉस हो सकता है। नया पार्टनर क्यों लॉस बेयर करेगा? ये एसेट कभी का है? पुराना है ना, 31 मार्च का है, वो एडमिट कभी हुआ? 1 अप्रैल को, अप्रैल को एडमिट हुआ ना, उसके पहले का ये सब, तो व्हाई ही शुड बेयर द लॉस? तो एसेट एंड लायबिलिटी को क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन करते हैं, बराबर है, ऑन एडमिशन। रीवैल्यूएशन करने के बाद वापस से एक नई बैलेंस शीट बनती है, न्यू बैलेंस शीट, बराबर है। तो न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए so now we will see which are the accounts prepared. Accounts prepared
for after admission of a new partner. तो after admission of a new partner, okay, now I will one thing, one first account is prepared, that is revaluation account. Second, partners capital account, and third is balance sheet. Okay, this balance sheet you know somewhat, right? 11th standard you have learned. Revaluation, it is new for you, and partners capital is also new for you, right? Now we will see what comes in revaluation account. So revaluation account, revaluation account is a ledger account. It's a ledger account. Here it is particulars, rupees, then again particulars, and here again rupees, right? And here it is credit. Now if we take into consideration, this is similar to profit and loss account that you have studied in 11th standard. It is similar to profit and loss account, right? So now on the credit side, what we will write? Increase in assets, whatever it is, increase, decrease in liabilities, and here opposite, decrease in assets and increase in liability. चलो सिंपल वे में समझते हैं. एसेट जब इंक्रीज होता है रिवैल्यूएशन के टाइम पे, सपोज के एसेट्स की वैल्यू, सपोज हम लोग ले लेते हैं लैंड. Land, it is 20,000 crores and it is revalued now. Revalued at 28,000 crores. So what is the difference? Now the value is more. After admission, it is revalued at 28,000. So 28,000 is more. So what is the difference? So 8,000 is increase or decrease? Increase. So asset is increase. So where will write here? Here you will write. Here you will write this assets. So it is a profit. Profit is recorded on credit side. I'll write here profit on credit side and loss on debit side. So we have made a profit, so that will be recorded on credit side. बराबर है. अभी एक लायबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं. लायबिलिटी से अपने क्रेडिटर्स थे. क्रेडिटर्स थे पहले बैलेंस शीट में 2,800. नाउ द रीवैल्यूड फिगर इज revalued at 2,200. What is the difference? 600 क्या हुआ है? कम हुआ है कि बढ़ा है? Yeah, it is reduce, right? Reduce है तो किधर लिखेंगे? लिखा है ना इधर? Reduce है तो किधर लिखेंगे? Decrease in liability. So we'll write here. So it is a profit. It is a profit. तो वो इधर ही लिखेंगे. चलो अभी एक लॉस का एग्जांपल. कैन यू टेल मी लॉस एग्जांपल? इसके बेसिस पे एक लॉस का एग्जांपल बताओ मेरे को. चलो लॉस का एग्जांपल बताओ मेरे को एक कोई. यस, यू कम हियर एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन यू जस्ट टेल. यस, प्लीज कम and tell. If you know, it's okay, otherwise I'll help you. Okay, come, don't worry, come and just tell them
के one example of this loss. Profit I have given these two. Now loss, how it can be loss? You tell me, I'll write. Loss. क्या? Assets, कोई भी assets. You take one assets. Take one assets. कोई भी assets का नाम बोल दो. Building तो हाँ building. Okay, fine, very good. Building, very good. What is the value of building? 40,000. Okay, fine, very good. Then now it is revalued. Revaluation का amount बोलो. हाँ, revalued amount कम करना है ना, इधर कम आएगा ना, इधर इससे कम बोलना है कुछ भी. हाँ, 20,000. Okay, she says it is 20,000 crores. Very good. She says 20,000 crores. She has given an example. Now the difference is, what you can say now? It is a loss or profit? Loss. Obviously, it is a loss. Decrease in assets. So decrease in assets is recorded here. Very good. She has done a great job. Really very good. Go. Good. Okay. So she has given one example and revalued at, okay, somewhat she was nervous, so I helped her. Okay, that's good. It's a great thing to come over here on the stage, right? I'm really proud of her, right? Really good. Okay. So one thing is clear, this is a loss, so loss will be recorded here. Now we will take one more example of liability. Liability, we can take one more example. Now Sandhya will come and say something regarding the liability. Give one example of liability. Sandhya, please come. Yeah, please come. Liability. You go give any example of liability. I will write here liability. You tell me any liability. Liability you know, no? Many liabilities you know, right? Right? Yeah. Please come. Come. Don't worry. Say liability. हाँ. एक हो गई है बैंक से लायबिलिटी ली है. हाँ, bank loan. Very good. Bank loan. What is the amount? 2 lakh. नहीं 2000. नहीं 20,000. 2,000. Okay. Now it is revalued. Revalued at 250. 2050. She says it is 2050. Okay. Right. She has taken the right example. What is the difference? 50. 50 is increase. Increase in liability will be recorded on debit side. Really good, Sandhya. I am proud of you. Okay, good. Okay. This way you should come and try. Nothing to worry. I'll help you if you are nervous, if you don't know something. I will help you out, but you should not hesitate. डरना नहीं है कभी भी. कभी ना कभी तो इधर आना ही है ना स्टेज पे. कभी कोई जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे तो प्रेजेंटेशन देना है. So you have to, right? So you have to come and say something. Okay? You get nervous, but एक बार लगेगा, दूसरी बार you will be confident. Okay? You should do that. Okay? So one more thing now, assets and liabilities revalued. Is it clear? Clear है? समझ में आया? Any doubt? Any confusion? Anything you want to ask? Just ask. I'll clear your doubts. Any confusion regarding this? What I have thought regarding goodwill? How was goodwill distributed? That you know in sacrificing ratio, right? And other things. How the partner is admitted? What he brings? What he brings when he's admitted? Capital plus goodwill. Why he brings goodwill? Why? To accommodate new partner, old partner sacrifice some profit. Sacrifice करते हैं profit नए पार्टनर को accommodate करने के लिए. तो दे sacrifice किया तो उन लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, right? तो they get goodwill amount. बराबर है. और दूसरा revaluation मैंने बताया. इधर क्या आएगा? Decrease in asset. Asset की वैल्यू कम होती है, so it is a loss. Increase in liability. Liability बढ़ जाती है तो भी loss है. और इधर increase in assets. Assets की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो it is a profit.
और डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो गए तो भी प्रॉफिट है। फिर इसका दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। ये क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो इधर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन लोगों का ओल्ड रेशियो था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो तो हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे तो यू विल कम टू नो डेफिनेटली, जब ज्यादा समझ में आएगा, पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। लेकिन एटलीस्ट तुमको इतना तो समझ में आ गया कि एडमिशन के टाइम पे क्या क्या होता है, बराबर है, और क्या क्या गुडविल का कॉन्सेप्ट है, दैट आई हैव एक्सप्लेन, एंड रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? क्लियर। नाउ यू कैन प्रिपेयर, ओपन योर 208 पेज, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट इज 10 क्वेश्चन, 9, फर्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, no? 8 question. Okay, now we will see in that question. You can see the question. What is Now, if you see the question you can see page number 208, right? Question number 8. You can read the question first. Yeah. Yeah, this question was asked for your information in March 2018 in the board exam, March 2022 and March 2025. That means 3 years it was asked. So it's a very important question. You take out your pencil now. Pencil. We'll mark the adjustment first. This is a question. Abha and Bina are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under. Liabilities and assets are given. Under that, the admission is admitted, partners terms and condition are given. They admit Rushil as a new partner from 1st April 2017 on the following conditions. Rushil will bring 1 lakh as his capital and 24,000 as goodwill in cash. So this is not required to be marked because we are going to prepare cash and bank account. Value of land and building, yes, this you mark because we will solve revaluation account. So land and building you mark adjustment number 2. Then value of machinery, adjustment number 3. Machinery you mark adjustment number 3. Provision for bad debts is to be kept 10% on debtors. You mark in debtors adjustment number 4. Debtors. Provision for outstanding electricity bill. So in liability it's not given any liability, such liability, so it will come separately. New profit and loss sharing ratio of all 3 partners are kept to be 2:1:2. Now you have to prepare a revaluation. I will show you how to prepare revaluation account. So revaluation account, revaluation account so revaluation account center, so this and this is particulars. So this is rupees, this side we will do at debit, and this is particulars, and here we will take as credit side. Okay, now we will see first adjustment. What was the second adjustment? Value of land and building. You see the question, then only you will understand. Value of land and building is to be increased by 17,000. Increase by, directly amount दिया है, कितने amount से increase करना है,
तो कितना इंक्रीज करना है? 17,000. एसेट इंक्रीज किया है तो किधर लिखेंगे हम लोग? इट इज अ प्रॉफिट. इट इज अ प्रॉफिट. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 17,000. ओके. Yeah, so we will write as 17,000. समझ में आया? एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, उसके लिए प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट हुआ तो किधर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया. दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है. मशीनरी टू बी डिक्रीज अप टू 32. अप टू या एट वर्ड होगा तो डिफरेंस निकालने का. डिफरेंस देखो कितना है. बैलेंस शीट में कितना है वैल्यू? 40,000 मिला. 40,000. नाउ इट इज 32. तो कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया. कितना कम हो गया? 8,000 कम हो गया, रिड्यूस हो गया. तो रिड्यूस हो गया तो किधर लिखने का? लॉस हुआ. एसेट्स कम हो गया तो लॉस. लॉस किधर लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड पे. तो क्या लिखने का इधर? 2 मशीनरी दैट इज 8,000. ये दो वैल्यू कैसे लिखा हम लोग ने? ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया? न्यू वैल्यू जो है वो दिया है, इट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट. और बैलेंस शीट में कितना दिया है? 40. और आज की तारीख में वैल्यू क्या है? 32. तो कितना कम हो गया? 8,000 कम हो गया. 8,000 कम हो गया तो इसका मतलब लॉस हुआ. तो लॉस हो गया तो विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड. ओके. नाउ दूसरा एक एडजस्टमेंट है. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स. अभी ये प्रोविजन जो है बैलेंस शीट में कितना दिया है? प्रोविजन बैड डेब्ट रिजर्व दैट इज अ प्रोविजन. कितना दिया है? 2,000. उन लोग बोलते हैं अभी 10% करना है तो 24,000 का 10% निकालना है. इंटू 10% कितना आएगा? 2,400. ये नया वैल्यू है. दिस इज द न्यू वैल्यू. न्यू प्रोविजन है ये. इतना बोला है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में. दिस इज न्यू प्रोविजन. तो ओल्ड वाला कितना है बैलेंस शीट में? देखो 2,000. बैलेंस शीट में इट्स गिवन 2,000. तो ये नया प्रोविजन ज्यादा है ना? नया प्रोविजन ज्यादा है. प्रोविजन बढ़ गया. 400 बढ़ गया. प्रोविजन बढ़ गया. पहले 2,000 था, अभी 2,400 हो गया. तो 400 रुपीज बढ़ गया. तो बढ़ गया है तो क्या करने का? ये जो है इसको लायबिलिटी ट्रीट करने का. प्रोविजन को एक लायबिलिटी ट्रीट करने का. इट इज नॉट लायबिलिटी बट उसको ट्रीट करने का कैलकुलेशन के लिए कि किधर लिखना है. तो लायबिलिटी बढ़ गया. पहले 2,000 था, अभी 2,400 हो गया. 400 बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट? ज्यादा पे करना है ना हम लोग को लायबिलिटी. सो इट इज अ लॉस. तो लॉस तो किधर आएगा? तो डेबिट साइड पे 2 BDR 400. बराबर. लायबिलिटी बढ़ गया. इसको लायबिलिटी ट्रीट करने का. या तो BDR तो लॉस ही होता है. BDR का मतलब क्या होता है? शायद पैसा नहीं आएगा. डाउटफुल. पैसा डेटर्स के पास से शायद नहीं आएगा. इट इज अ प्रोविजन. तो शायद नहीं आएगा. तो पहले 2,000 नहीं आने वाला था, अभी कितना नहीं आने वाला है? 2,004. 400 रुपया बढ़ गया लॉस. तो लॉस तो इधर ही रिकॉर्ड होता है. आइदर यू ट्रीट एज लायबिलिटी या तो उसको इस वे से देख सकते हैं लॉस के हिसाब से. नाउ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट 1,100. इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है पे करने का, आउटस्टैंडिंग, तो उसका प्रोविजन करना है. लायबिलिटी है ये. आउटस्टैंडिंग बिल पे करने का तो लायबिलिटी हुआ. तो लायबिलिटी बढ़ गया. पहले कुछ भी नहीं था, अभी बढ़ गया. लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो क्या करना है? यस, संध्या नोस. बराबर है. डेबिट साइड पे लिखना है तो इधर लिख देंगे 2 आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल. कितना है? 1100. ओके. एनी डाउट? पूछ रहा था. यस बलवंत.
एनी डाउट? नो, ओके फाइन। जो भी कंफ्यूजन है पूछ लेने का, अगर नहीं पूछेंगे तो तुम्हारे को डाउट क्रिएट होगा, फिर डाउट 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 बनते जाएगा और चैप्टर विल बी होल डाउट, राइट? यू शुड आस्क व्हाटएवर यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू कैन आस्क। पूछो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। इसमें से कोई भी चीज नहीं समझ में आया, आगे का तो बाकी है, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बाकी है, लेकिन ये समझ में आ गया? क्लियर, वेरी मच क्लियर, हो गया ना क्लियर? चलो अभी कौन सी साइड ज्यादा है? यस, यू कैन सी दैट डेफिनेटली क्रेडिट साइड इज मोर। मोर का मतलब 17,000 है ये। सो आई विल राइट 17,000 ऑन बोथ द साइड्स। Yes, now this total is 9,500, बराबर है? So 9,500 that means 7,500 का डिफरेंस है, राइट? 7,500 डिफरेंस। So I'll write here, जिधर कम था उधर लिखने का। देखो ये साइड क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इज मोर, प्रॉफिट इज मोर, तो ये प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, राइट? ए सॉरी नाम क्या है इधर? आबा एंड बीना, आबा एंड बीना। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज 2:1। 2:1 का मतलब इसको 5,000 मिलेगा, इसको 2,500 मिलेगा। फर्स्ट पार्टनर को 5,000 मिलेगा, सेकेंड पार्टनर को 2,500। कैलकुलेट करके देख लो, वही आएगा, राइट? इफ यू वांट टू सी यू कैन सी 5,000 एंड 2,500 ही आएगा, सो 7,500। ओके, सो रिवैल्यूएशन आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है, और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह से आ जाएगा। सो दिस, ये जो है रिवैल्यूएशन तुमको प्रैक्टिस करना है, एंड तुमको एडिशनल चाहिए ऐसा क्वेश्चन तो यू कैन टेक आउट इलस्ट्रेशन 22। नहीं, वो बाद में करना है, वो कैपिटल के लिए कैलकुलेट होगा, अभी नहीं होगा। तो यू कैन सी 182 पेज देखो तुम लोग, 182 इलस्ट्रेशन 22, सेम इस टाइप का ही सम है, सिमिलर, इट इज द सेम टाइप ऑफ सम। तो तुम लोग उसमें से रिवैल्यूएशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओनली रिवैल्यूएशन, यू नो रिवैल्यूएशन, राइट? तो रिवैल्यूएशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो इतना समझ में आ गया, ये रिवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आगे का पार्टनर्स कैपिटल मत देखना, उसमें वो नहीं समझ में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट मत देखना, वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन टू यू, आई विल कंटिन्यू। ओके, क्लियर? That's all for today. We'll continue in the next lecture. Okay, thank you.